Today is the doubt clearing class of last day's homework. Okay, so the first doubt is 19 number 3. So everyone please note down very carefully. So 19 का question number 3 देखना एक बार. So the question is I equals to x square plus x plus 1 divided by x plus 2 into x square plus 1. All right. Now clearly you find that जैसे लास्ट जो मैंने कंडीशन बताया था उसके हिसाब से when do we apply partial fraction? We apply partial fraction if the degree of numerator here we find is 2 in the numerator and the degree of denominator which is 3. So if the degree of numerator is at least 1 less, कम से कम एक कम अगर हो numerator का degree denominator से, so we apply partial fraction in this particular case. Along with this we have to keep in mind that denominator is in completely factorized form. तो यहाँ पे denominator अगर ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे completely factorized form में भी है देखने आप. So we can apply partial fraction in this case. Now, in order to apply partial fraction, can you tell me which rule which rule out of the three will be applied in the denominator? Can you tell me? कौन सा rule apply होगा denominator में? यहाँ पे दो फैक्टर है, एक है x plus 2 जो कि लीनियर है और एक है x square plus 1 जो कि क्वाड्रेटिक है और ये फर्दर फैक्टराइज भी नहीं हो सकता. तो बता सकते हो तुम लोग कौन सा यहाँ पे रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 1 x plus 2 के लिए बिकॉज ये लीनियर है and rule number 2 for the quadratic factor. All right, तो यहाँ पे पहला फैक्टर के लिए रूल नंबर 1 और दूसरा वाला फैक्टर के लिए रूल नंबर 2 अप्लाई होगा. After this line you need to take LCM and simplify this to get one equation using which we will determine the values of A, B and C. So for that I'm taking the LCM of denominator on the right hand side. तो राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम क्लियरली x plus 2 into x square plus 1 हो जाएगा. Now what is multiplied to x plus 2 so that we get this whole expression? It is x square plus 1. तो यहाँ पे आ जाएगा a times x square plus 1 plus what is multiplied to x square plus 1 so that we get x plus 2 into x square plus 1. It is clearly x plus 2. Now we find that denominator gets cancelled and we have x square plus x plus 1 and on the right hand side we have a times x square plus 1 plus bx plus c into x plus 2. Now जो मैंने रूल बताया था उसके हिसाब से a के डिनोमिनेटर में x plus 2 है. If we equalize x plus 2 with 0, so what is the value of x we are obtaining? We will get, I mean, it's minus 2. Put at the place of x minus 2. So minus 2 का square 4. 4 plus of minus 2 is 2. 2 plus 1 is 3. यहाँ पे minus 2 का square 4. 4 plus 1 is 5. तो ये हो गया 5a. और यहाँ पे minus 2 plus 2 becomes 0. तो 0 multiplied with bx plus c will be 0. तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3/5. Now let us put the value of x equals to, अगर मैं मान लो bx plus c के डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज कर लूं, so you know that ये वाला रूल मैंने इस पे रूल नंबर 3 तभी अप्लाई किया मैंने जब ये और फर्दर फैक्टराइज नहीं. तो डेफिनेटली अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 which is imaginary. So please do not put imaginary quantity because हम लोग यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यूज ही पुट कर सकते. ओके, तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 0 के -2 के अलावा x का वैल्यू -2 के अलावा now after we have substituted x equals to -2 and now we don't have anything in the denominator of this partials which can be substituted. Now I said you in the first class only that if you have used all the values of x जिसमें partials के denominator में जो जो values तुम 0 से इक्वलाइज करके जैसे कि x plus 2 को 0 से इक्वलाइज करके यहां से मुझे x का वैल्यू -2 मिला, मैंने यूज कर दिया. तो -2 के अलावा हम कोई और नंबर सोचेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर जो कि -2 के अलावा होना चाहिए.
मींस अदर देन -2 थिंक ऑफ एनी नंबर जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके और क्या निकालूंगा, बी और सी का वैल्यू। तो अगर मैंने ये बात बताया था तुम लोग को कि अगर हम लोगों ने जीरो यूज नहीं किया है, अगर हम लोगों ने जीरो यूज नहीं किया है, तो बताओ तो -2 के बाद मुझे सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ तो x का वैल्यू जीरो आना चाहिए। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू जीरो हियर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में अब हम x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. On the right hand side, 0 plus 1 is 1. So we have a plus 0 into b is 0. ठीक है ना, देखो 0 x की जगह लगाया तो 0 into b 0, 0 plus c is c, और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2c। अगर मैं यहाँ पे a के जगह पे वैल्यू पुट करूं 3/5, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके 2c आ जाएगा 1 minus 3/5, और यहां से 2c का वैल्यू हो गया 2/5। दैट इज द वैल्यू ऑफ c इज हाउ मच, 1/5। अब देखो x का वैल्यू -2 और 0 के अलावा कोई और नंबर हम सोचेंगे, क्योंकि मुझे a का वैल्यू तो मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, अभी भी b का वैल्यू बाकी है निकालना। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, नाउ विल पुट एनी अदर वैल्यूज जो कि 0 और -2 ना हो। ठीक है, तो लेट्स से 1, लेट्स से 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 2 का क्या आएगा, 1 plus 1 plus 1 which is how much, 3। राइट साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a। ये हो गया 1 plus 2 3, तो 3 into b becomes 3b, और ये हो गया तुम्हारा 3c। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a और c का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। a का वैल्यू 3/5 है तो ये हो जाएगा 2 into 3/5 which is 6/5। उसके बाद c का वैल्यू है 1/5 तो ये हो जाएगा 3/5। ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग 6/5 plus 3/5 हो जाएगा 9/5। चलो लेफ्ट में ले लेते हैं हम। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताओ तो, 15 minus 9 कितना होता है, 6। 6/5 equals to 3b, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 divided by 5 हो जाएगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे a का वैल्यू, ठीक है, उसके बाद c का वैल्यू और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ये तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। Now putting the values of a, b and c in equation number 1। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या मिल जाएगा, we'll get x square plus x plus 1 divided by x plus 2 into x square plus 1। ठीक है, ये टोटल फ्रैक्शन है, मुझे इसको पार्शियल से स्प्लिट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर है a बाई, जो कि a का वैल्यू है 3/5 x plus 2। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे b और c का वैल्यू पुट करूंगा इस और इस जगह पे, तो b का वैल्यू है 2/5 और c का वैल्यू है 1/5। तो b और c के जगह पे अगर मैं 2/5 और 1/5 पुट करूं तो ये हो जाएगा 2/5x plus 1/5। ऑलराइट, इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो 2x plus 1/5 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x plus 1/5 का 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन। ठीक है, समझ में आया सबके को कि यहाँ पे अगर मैं b के जगह पे 2/5 और c की जगह पे 1/5 लगाऊं तो सिंप्लीफाई होगी, इतना आ जाएगा। तो ये जो 5 है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस बाकी है। इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 1/x plus 2, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो 1/5 है इसको बाहर रखते हैं ना। तुम लोग को याद होगा इसमें मैंने चेन रूल का कंसेप्ट भी बताया था बहुत पहले, कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में जिस पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, है कि नहीं। या फिर मैंने ये बताया था ना कि उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, और तुमको मैंने ये भी बताया था कि देखो लीनियर एक्सप्रेशन का ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। तो 1/x plus 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of mod x plus 2, और फिर जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है, जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बताओ तो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट बताओ तुम लोग, क्या दिख रहा है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यस 1 का रेसिप्रोकल 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं है। अब बताओ मुझे ये सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे 2x plus 1 है और डिनोमिनेटर में x square plus 1 है, तो बताओ तो कैसे होगा इंटीग्रेट।
सर log mod x square plus 1. नहीं, पहले ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? सर 2x. ये सिर्फ 2x इधर है, ये प्लस 1 तो नहीं आ रहा ना, तो एक काम करो 2x को x स्क्वायर प्लस 1 से स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड f, वो वाला फॉर्म f डैश x बाय fx। और जो 1 वाला पार्ट है, 1 वाला पार्ट, उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला पार्ट है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बताओ तो? tan इनवर्स। वेरी गुड, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 बाई 5, ये हो गया f डैश x बाय fx का फॉर्म, ठीक है, f डैश x बाय fx का फॉर्म हो गया, जो कि क्या होता है log ऑफ मॉड fx, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हो गया 1 बाई 5 tan इनवर्स x। ऑल राइट एवरीवन, तो ये हो गया तुम्हारा 19 का नंबर 3 का डाउट। आई थिंक क्लियर हुआ, इसको कॉपी करो फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें पार्शियल लगेगा कैसे। ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर 4 में कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। पहला पॉइंट तो क्लियर है, जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाया था। लेकिन सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया था कि डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज है नहीं, तो इसको हम फैक्टराइज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैं डिनोमिनेटर को तीनों में से सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बच जाएगा। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे माइनस 3x माइनस 2x, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 3 बच जाएगा, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है। अब फैक्टराइज करें तो x माइनस 3 x माइनस 2, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मतलब ये चीज सेम चीज 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो ये चीज को बार बार लिखना पड़ता है, इसको रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिखते हैं। अब बता सकते हो तुम लोग, यहाँ पे हम लोग पार्शियल अगर अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर फैक्टर कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या रूल नंबर 2 का फॉर्म है बताओ तो? किस फॉर्म में, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3? यस, रूल नंबर 1, क्योंकि सारा फैक्टर्स लीनियर है। a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकंड फैक्टर एंड c बाय थर्ड फैक्टर। कंप्लीटिंग दिस सम इज योर टास्क, ओके। तो मैंने ये पार्ट समझा दिया, जहां जहां मुझे लगता है कि डाउट है या ऑलरेडी मुझे स्टूडेंट से पूछा है ऑलरेडी डाउट, तो वो सारे सम्स में एक बार उतना पार्ट तक एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ध्यान देना, नेक्स्ट इसको कॉपी कर लो और इसको कंप्लीट पूरा तुम लोग खुद कर लो। 5 नेक्स्ट सम जो मैं रिपीट कर रहा हूं बोर्ड पे, आई मीन स्क्रीन पे, सॉरी, दिस इज नंबर 5 एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 2. All right, so I want everyone to tell me, you all tell me कि क्या मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम अब लगा सकते हैं? बताओ तुम लोग मुझे, क्या मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कर सकता हूं? देख के मुझे बताओ, क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो रीजन क्या है इसका? न्यूमरेटर का डिग्री 3 और डिनोमिनेटर का डिग्री, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो x का हाईएस्ट पार्ट 2 होगा, डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी नहीं लग सकता। तो इसमें हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन से पहले कौन सा चीज करना पड़ेगा बताओ तो? व्हाट, आई मीन व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू डू, टेल मी। डिवाइड। बट एक बात बताओ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा डिवीजन के लिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 3x आएगा एंड प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके इन दोनों एक्सप्रेशन फैक्टर्स को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब आएगा, x, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। नाउ लेट अस चेंज द साइन, लेट अस चेंज द साइन, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया,
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। यू नो दैट डिवीजन हम लोग तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, कि नहीं? तो यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री 2 है, x का हाईएस्ट पार्ट 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे डिवीजन। 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, लेट अस चेंज द साइन, कैंसिल हो गया। प्लस 9x माइनस 2x इज 7x। अब इसका डिग्री 1 है और डिवाइजर का डिग्री 2 है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे डिवीजन और क्या लिखेंगे इसको, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, है ना? अब देखो बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सुनना बात को ध्यान से, कि चलो हम लोग x को तो अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, दैट इज फाइन। 3 को भी हम लोग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, दैट्स ओके। बट बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात कि यहाँ पे पार्शियल अप्लाई करो। क्या इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में पहले का कुछ कंसेप्ट आ रहा है? बताओ तो, क्या इसके अलावा, पार्शियल के अलावा कुछ और कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है? एनीवन प्लीज कैन यू रिप्लाई? क्या पार्शियल के अलावा और कुछ दिमाग, हाँ बोलो, टेल मी। पार्शियल के अलावा किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा है जो पहले सीखा है तुम लोगों ने? नहीं आ रहा है? भूल गया मतलब तुम लोग? ये कैसा है बताओ तो, लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं? तो याद है तुम लोगों को लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ऐसा कुछ था? हाँ, स्पेशल इंटीग्रल में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बोल के मैंने कुछ कराया था। यहाँ पे न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा सवाल क्या रेज होता है कि आगे जैसे बढ़ोगे पीछे का भूलते जाओगे। तो इतना ज्यादा ही सिंप्लीफाइड करके मैंने चीजों को दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, सबको थोड़ा स्टार्ट करो प्रैक्टिस करने का, क्योंकि एटलीस्ट जो भी टाइम है हम लोग उसमें अगर आगे जा रहे हैं, अगर वी आर गोइंग वेरी स्लो, तो एटलीस्ट जो करा रहे हैं ना उसको तो एटलीस्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फिर कैसे होगा बताओ? सबको थोड़ा रिवीजन पे भी ध्यान दो, ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये वाला, क्या मैं इसको वापस से ऐसे लिख सकता हूँ? देखो तो ये चीज दिख रहा है एरो सबको? हाँ सर। क्योंकि हमको पता है कि उसी को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा था। अब हम इसमें पार्शियल अप्लाई कर देंगे, किसमें? सिर्फ 7x माइनस 6 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 वाले पार्ट में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम 100% श्योर दैट इतना छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन वाला एकदम सिंपल जो कि लीनियर दिख रहा है तुमको, इसमें मुझे कोई हेल्प करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी पार्ट में डाउट होगा कि इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो प्लीज कॉपी डाउन एंड आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स हियर टू फर्स्ट। So everyone tell me now one thing. Now I'm just discussing few questions which you may get doubt, okay, in those questions. मैं वो सारे questions को एक बार डिस्कस कर लूं, जो मुझे लगता है पूरा सॉल्व करना चाहिए पूरा सॉल्व करता हूँ। जैसे कि ये वाला सम देखना एक बार, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सम? इसमें पार्शियल अगर लगाना है तो कैसे अप्लाई करना है बताओ? क्या मैं पहले बताओ पार्शियल लगा सकता हूँ? पहला पॉइंट, क्या मैं इसमें पार्शियल अप्लाई कर सकता हूँ? यस, लगा सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई इन यस और नो। यस, हाँ बोलो बोल रहे, पूरा बोलो। यस टेल मी। इसको डिवीजन करके करना पड़ेगा क्योंकि h स्क्वायर इक्वल मतलब रेशियो में, मतलब अब तो डिग्री बराबर है तो डिवीजन करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो डिवीजन कर दिया मैंने। डिवीजन करने से पहले मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो देखो इस तरह का छोटे सम्स आ सकते हैं जहां पे, ठीक है, -1 एक्सक्यूज मी सॉरी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2x -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया -2x। इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, सो विल स्टॉप डिवीजन नाउ and can I write this as quotient plus remainder by divisor, and you know that ये जो divisor है इसको वापस हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ऑलराइट, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2
भी बाहर रख देते, x बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे कोई बता सकता है इसमें क्या करना चाहिए? यस, क्या मैं पार्शियल लगा सकता हूँ? क्या मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूँ? यस और नो? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री कम है और डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज है। तो बताओ तो डिनोमिनेटर में कौन सा रूल अप्लाई करूंगी? यस, विच रूल? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कौन सा? बताओ। Rule number 2. 2 रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है? a बाई एक्स प्लस वन, उसके बाद b बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है कि नहीं? इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा, इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मैं इसको एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी एक बार समझा देता हूँ। देखो, इतना छोटा छोटा सम्स में इतना अगर प्रोसेस दिखाओगे तो टाइम जो है काफी लग जाएगा। तो कहीं कहीं हम लोग को थोड़ा शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। क्या? देखो ध्यान से, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x। क्या मैं न्यूमरेटर में x, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन तो वर्ड का मतलब मैंने याद है समझाया था, मतलब एक टोटल फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ने का तरीका को क्या बोलते हैं? पार्शियल। तो क्या मैं यहाँ पे x बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को x प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? देखो तो एक बार ध्यान से नोट करना, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे अगर मैं x प्लस वन को, अगर मैं x प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर से अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या बच जाएगा? 1 बाई एक्स प्लस वन माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, बात समझ में आया नहीं है? देखो, हम लोगों ने यहाँ पे भी टोटल फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में स्प्लिट ही किया है, लेकिन यहाँ पे पूरे प्रोसेस को नहीं शो किया क्योंकि लग रहा है कि ये काफी इजी है ना, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेप्स को नहीं शो किया, और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना? यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा प्रोसेस को दिखा करके फिर ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। अब अगर तुम देखो तो जब हम लोग इसको पूरा को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे ना, तो पता है ए का वैल्यू क्या आएगा? ए का वैल्यू क्या आएगा? दिख रहा है? 1, दैट्स करेक्ट। बी का वैल्यू क्या आएगा पता है? -1 ही आएगा। तो वो हम लोग को, ये हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट लगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस और नो? ओके, अब देखो नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है, और ये है नेक्स्ट इज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना। क्वेश्चन है tan x plus tan cube x, tan x plus tan cube x डिवाइडेड बाय 1 plus tan cube x, या फिर tan cube x plus 1, एक ही बात, ठीक है? अब देखो हम लोग इस समय क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में tan x कॉमन ले लूंगा क्योंकि मुझे वो tan x कॉमन दिख रहा है। लेने के बाद जो बचेगा वो है 1 plus tan square x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी tan cube x प्लस 1 है, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब बताना व्हाट इज 1 plus tan square x? कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 plus tan square x रिड्यूस टू? X square X. sec square x। ना मुझे इस लाइन के बाद तुम लोग बताओ कि इस लाइन के बाद मुझे क्या करना चाहिए? टेल मी, इस लाइन के बाद क्या करना चाहिए? टेल मी, हरिया, इतना टाइम। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? ऊपर sec square x दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? sec square x dx को हम लोग रिप्लेस कर देंगे dt से। समझ में आया सबको को ये बात? सो I becomes tan x के जगह पे t लगा देते हैं हम लोग। देखो जहां जहां tan x है वहां पे t, तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाय टी क्यू प्लस 1, और ये जो दिख रहा है ना तुमको sec square x into dx, इसके जगह पे dt लगा देंगे। sec square x into dx के जगह पे dt लगा देंगे। अब क्या मैं यहाँ पे पार्शियल लगा सकता हूँ? बताओ, तुम लोग बताओ मुझे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, फॉलो दिस 3, आई मीन जस्ट स्टेप बाय स्टेप। क्या मैं यहाँ पे पार्शियल लगा सकता हूँ? यस, चलिए। स्टेप 2 होगा ना इसमें? क्या चीज? स्टेप
मेरे नहीं सुनाई दे, तुम्हारा क्या नेटवर्क प्रॉब्लम था? फिर से बोलो, फिर से वंस अगेन। ये वाला फॉर्मेट फॉर्मूला नंबर 2 मतलब फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा ना, क्योंकि tan c उसमें कोई फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है ना। हाँ, तो अब वही मैं पूछ रहा हूँ तुम से, तो तुम लोग का ये जवाब है कि डिनोमिनेटर को और फैक्टराइज करना चाहिए। इस स्टेज में तो सिर्फ रूल 1 कंडीशन 1 सेटिस्फाई करने से थोड़ी ना हो जाएगा। कंडीशन 2 में क्या है? फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर कम से कम उसमें दो चीज का प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 को 1 क्यूब लिख करके एंड वी विल अप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है बताओ तो? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है ना? ठीक है, सबको को क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, इस वाले फैक्टर में कौन सा रूल अप्लाई होगा और इस फैक्टर में कौन सा रूल अप्लाई होगा? बताओ, टेल मी, कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा बताओ? पहले वाला में रूल नंबर 1 और सेकंड वाला में रूल नंबर नॉट श्योर। कौन सा? सेकंड वाला में कौन सा रूल? a बाई फर्स्ट फैक्टर, रूल नंबर 1। और ये जो है क्वाड्रेटिक, ये जो दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक वाले में कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम लोग? यस, भूल गया तुम लोग? रूल नंबर 3 अप्लाई होगा ना। और एक और चीज, रूल नंबर 3 अप्लाई करने से पहले वो जो क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है वो और फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो उसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज नहीं हो रहा है वो क्वाड्रेटिक, तभी रूल 3 अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, रूल 3। समझ में सबको को? अब देखो आगे हम लोग एलसीएम लेके एक इक्वेशन निकालेंगे जिसको यूज करके हम लोग ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, तो मैं अब इतना तो एलसीएम लेने वाला पार्ट में शो नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑलराइट, bt प्लस सी इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। देखो ये कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग t इक्वल्स टू a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस bt प्लस सी इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में t का अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कौन से वैल्यू से करेंगे? जो a के डिनोमिनेटर में जो t प्लस 1 है उसको 0 से इक्वेट करके जो t का वैल्यू मिलेगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम t का वैल्यू -1 पुट करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे t का वैल्यू -1 पुट करें तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में -1। ठीक है, लेफ्ट साइड में -1 आ जाएगा और राइट साइड में क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस ऑफ -1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, मतलब ये हो गया 3 है। यहाँ पे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -1/3। ओके, हम लोग को a का वैल्यू क्या मिला? -1/3। अब हम t का वैल्यू देखो, ये कभी भी तुम देखना क्वाड्रेटिक को अगर हम 0 से इक्वलाइज करें फैक्टराइज ही नहीं होगा। ठीक है, इसको तुम लोग इसके जो डिनोमिनेटर है ना, इसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज करके कोई फायदा नहीं है। तुम t का वैल्यू -1 पुट कर दिया, कोई और नंबर पुट करो। तो बताओ, तो -1 के अलावा मैं अगर तुमको ऑप्शन दूं कोई और वैल्यू पुट करने का, तो तुम कौन सा चूज करोगे बताओ? यस, 0, दैट्स करेक्ट। वी विल ऑलवेज प्रेफर यूजिंग 0 बिकॉज़ 0 से हमारा कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा। लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, राइट साइड में 0 प्लस 1 1 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। मुझे यहाँ पे c का वैल्यू चाहिए जो कि -a है। a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस ऑफ -1/3 क्या होगा? +1/3। अब यहाँ पे t के जगह पे हम 0 -1 के अलावा कोई और नंबर पुट करेंगे, तो मान लो 1 पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये लेफ्ट में 1 आ जाएगा, राइट में a आ जाएगा और यहाँ पे 2b प्लस 2c आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू -1/3 पुट करें एंड c का वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो फिर बताओ तो क्या आ रहा है b का वैल्यू? b का वैल्यू 1/3 आ रहा है, चेक करो तो सबको, चेक कर लो एक बार। ओके, b का वैल्यू 1/3 आ रहा है, मतलब हम लोगों ने a का वैल्यू, c का वैल्यू
और b का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब इसको यूज करके यहाँ पे पुट करके और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस पेज एवरीवन। Now let us substitute putting the values of A, B and C in equation number 1. So if we put in equation number 1, we will get t by it was how much? T by t plus 1, t by t plus 1, t square minus t, t square minus t plus 1 equals to a का वैल्यू क्या था? a का वैल्यू था -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 टाइम्स t plus 1। b का वैल्यू क्या था? 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। देखो अगर हम bt plus c में अगर मैं b का वैल्यू नोट करना एक बार सकते, अगर मैं b का वैल्यू 1/3 पुट कर दूं और c का वैल्यू भी 1/3 है ना, पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा बताओ तो? t plus 1/3 मिल जाएगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, bt plus c है ना, ये देखो ये वाला, इस जगह पे ये जो bt plus c है, इस जगह पे मैं डायरेक्ट t plus 1/3 पुट कर दूंगा। t plus 1/3 और 3 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। डिनोमिनेटर में क्या है? t square minus t plus 1 है। All right everyone, now let's integrate now। तो ये हो गया I equals to -1/3 1/t plus 1। ओके, यहाँ पे ये 1/3 को बाहर रखते हैं हम लोग, t plus 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस t plus 1। अच्छा तुमको ये वाला इंटीग्रेंड जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाला को देख के तुमको याद आ रहा है? यस, डू यू रिमेम्बर प्रीवियसली यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? याद है तुमको कुछ? इसको हम अलग से I1 ले लेते हैं पहले। लेट I1 इक्वल्स टू t plus 1 by t स्क्वायर माइनस t plus 1, और इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं। देखो मैंने एक चीज गलती किया है यहाँ पे, पता है गलती क्या है? ये tx लिख दिया यहाँ पे। एक गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती है। अगर ये करोगे तो एग्जाम में इसके लिए मार्क्स कटेगा। ठीक है, dt है ये, गलती से मैंने tx लिख दिया। तो ये अब हम इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बार बार ये लाइन को लिख के फिर इसके साथ इसको सॉल्व करना थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको अलग से I1 लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेंड। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। टेल मी, बताओ क्या करें इसमें? भूल गया तुम लोग? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भूल गया? याद है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लीनियर होता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स? इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके पहले न्यूमरेटर में कॉपी कर देते हैं, कि नहीं? है कि नहीं? अब बताओ मुझे 2t को t बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2t को t बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? हाफ। हाफ, करेक्ट। हाफ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ इंटू 2t माइनस 1 क्या हो जाएगा? t माइनस हाफ। देखो पहला टर्म तो मैच कर रहे हैं, लेकिन सेकंड टर्म मैच नहीं कर रहा। सेकंड टर्म माइनस हाफ है और यहाँ पे +1। अब बताओ माइनस हाफ में क्या ऐड करने से आंसर 1 आएगा? सो इट इज 1 plus half, that is how much? 3/2। ऑल राइट, समझ में आया सभी को ये वाला लाइन? ओके, ये हम लोगों ने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में भी किया था पहले। ओके, अब देखो तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस t plus 1। और जो दूसरा वाला पार्ट है ये हो जाएगा 3/2 1/t स्क्वायर माइनस t plus 1।
Now what is integration of 2t by t minus 1, t square minus t plus 1? Tell me, फटाफट बताओ. The log of t square minus t plus 1. Correct. It is log of mod t square minus t plus 1. Very good. It is in the form f dash by f. याद है ना? f dash मतलब न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का. और जो दूसरा वाला पार्ट है याद है इसका एक टाइप था. हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रल में दो टाइप किया था. एक किया था कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक और एक किया था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक. तो ये क्या है? कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो यहाँ पे टी स्क्वायर है. अब हम क्या करेंगे? टी को क्या लिखेंगे? याद है 2 इंटू टी इंटू, याद है ये चीज 2 इंटू टी इंटू हाउ मच? भूल गए तुम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. प्रैक्टिस तो करो तुम लोग. प्रैक्टिस सेल्फ अगर नहीं करोगे ना तो इंटीग्रेशन ऐसा चीज है कभी भी दिमाग में नहीं आएगा. उस समय समझ में आ जाएगा क्योंकि उस समय डेफिनेटली हम समझा रहे तो समझ में तो आएगा ही, बट ऐसे बाद में तुमको कुछ याद नहीं रहेगा. तो यहाँ पे टी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? याद है 2 इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में. ये याद है तुम लोगों को? तो यहाँ पे टी को मैंने 2 इंटू टी लिख दिया. इंटू क्या लिखे कि ये हाफ. अब यहाँ पे ऐड क्या करेंगे? प्लस वाई स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे. करेक्ट. ठीक है. तो प्लस 1 तो ऑलरेडी है 1. तो ये हो गया तुम्हारा हाफ. तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि 2 पेज अभी होने वाला है. तुम्हारी कॉपी में तो लगभग 30वें पेज में होगा. तुम लोग क्या 3 मार्क्स में ये सब समझ आएगा? डेफिनेटली नहीं. लेकिन क्या करें हम लोग, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये सब लेवल का समझ कर लोगे तो. और देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है पैटर्न का. कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है. ठीक है. अब देखो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू हाफ प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं? टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4. ये तो हो गया इतना पार्ट. माइनस 1/4 प्लस 1 कितना होता है? 3/4. क्या मैं 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? समझ में क्या किया मैंने? माइनस 1/4 प्लस 1 को मैंने लिख दिया 3/4 और इसको लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर. अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तुम बताओ. So 1 by x square plus a square. यस 1 by x square plus a square का फॉर्मूला अप्लाई होगा. और फॉर्मूला क्या है? 1 by a, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ x मतलब t माइनस हाफ बाई a. ठीक है. अब देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया. काफी लंबा सम है और बढ़िया सम भी है. देखो इसमें एक साथ कितने सारे कंसेप्ट आ गए. ये काफी बढ़िया सम है. 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3. √3. दैट्स करेक्ट. 3/√3. देखो न्यूमरेटर वाला जो 3 है उसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं. तो √3 अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा √3. ठीक है. अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तुम लोग. तो एलसीएम लेने से आ जाएगा 2t माइनस 1 बाई √3. ठीक है ना, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद. और लास्ट में अब बचा आंसर लिखना है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सो आई बिकम्स, आंसर क्या होगा देखो, -1/3 log of mod t plus 1, ठीक है, प्लस 1/3 टाइम्स दिस एंटायर एक्सप्रेशन. ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा चीज हम लोगों ने क्या लिया था? इसको पूरा को ही हम लोगों ने I1 लिया था. ये तो 1/3 टाइम्स हाफ log of mod t square minus t plus 1 plus √3 into tan inverse 2t minus 1 by √3. और लास्ट में एक प्लस ही दे दे. ठीक है. अच्छा एक और स्टेप बाकी बताओ तो उसमें क्या करना है? उस स्टेप में t के जगह पे क्या लगाना है अभी? Tan x. tan x. तो जहां जहां t दिख रहा है तुम लोग t की जगह tan x लगा देना. मैं नहीं लगा रहा क्योंकि फिर पेज जब बदलेंगे तो वापस पीछे से देख के लिखना, फिर टाइम लगेगा. तो तुम लोग इसको कंप्लीट करें. ठीक है. तुम लोग नहीं छोड़ सकते, तुम लोगों को करना ही है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस सम. नेक्स्ट सम इज नंबर 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में x टू द पावर 4 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो मुझे कोई बता सकता है ये सब में पहला स्टेप क्या करना है? मैं तो नहीं करने वाला हूँ ये सब, लेकिन तुम लोग बताओ क्या करें. डिवाइड करना है. वेरी गुड. पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है.
डिवाइड करके फिर उसके बाद तुम लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सम नंबर 10 में पहले क्या करना है बताओ तो। 1/x³ + 1 है, तो बताओ तो 1x³ + 1 को कैसे सॉल्व करें। याद है इसके पहले वाला सम जो एकदम बहुत बड़ा सम, ये याद है ये वाला स्टेप दिख रहा है। बस डिफरेंस क्या है पता है, ये सम है देखो यहाँ पे t दिख रहा है और डिनोमिनेटर में t³ + 1, और ये वाले सम में क्या है 1 है न्यूमरेटर में, बस t नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग पहले 1/x + 1 x² + 1 - x। अब इसमें पार्शियल का जो मेथड है ना ये अप्लाई करेंगे, एकदम सेम सम है, देखो ये रहा एकदम सेम, ठीक है ना। और जो लास्ट समय नंबर 11 जो कि ये होमवर्क था ये भी सेम है, नंबर 10 और 11 सेम है, काफी लंबा है ये एक्सरसाइज। इसमें 1 को 1³ लिख के a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करें। ऑलराइट, इसमें a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करें। दिस इज क्लियर। सो एवरीवन नोट डाउन, ये सब सम्स तुम लोग को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है ना, अभी बाकी है क्लास। अच्छा अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग सम नंबर नेक्स्ट टाइप, दैट इज सम नंबर 12, 13, 14, ये सब टाइप स्टार्ट करेंगे। अभी 2 टाइप बचे हैं, ठीक है। So we are doing a type of question, ठीक है। ये जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इन पार्शियल। इस टाइप का मैं एक नाम दे रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इन पार्शियल, मतलब पार्शियल में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इन पार्शियल, समझना तुम लोग। और ये टाइप का क्वेश्चन है सारा नंबर 12 से लेकर के सम नंबर 15 तक सारा सम एक जैसे ही है, इसी टाइप से बेस्ड है, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार सम नंबर 12। So the question is I equals to integration of x² divided by x² + 4 into x² + 9, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूं, तुम लोग मुझे जवाब देना, बताओ क्या मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूं, हाँ या ना बताओ। क्या मैं इसमें पार्शियल अप्लाई कर सकता हूं? यस, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री कॉपी मत करना, क्योंकि फिर मैं इसके बाद कैंसिल करूंगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है कम है, कम है कि नहीं, तो डिवाइड क्यों करेंगे हम लोग। न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, तो बताओ तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स में कौन सा रूल अप्लाई है। नहीं, अब ये तो आगे तो फैक्टराइज हो नहीं पाएगा ना। क्या x² + 4 और x² + 9 को तुम फैक्टराइज कर पाओगे, फैक्टराइज ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से इसको हम क्या लिखेंगे, ax + b डिवाइडेड बाई x² + 4, क्लियर। और दूसरा वाला को क्या लिखेंगे, cx + d डिवाइडेड बाई x² + 9, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग एक बात बताओ, ये सब नहीं लग रहा है तुम लोगों की, यहाँ पे जब हम आगे जब हम वैल्यूज निकालेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, 4 का वैल्यूज निकाला करेगा, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे तुम लोग एक पैटर्न देखो, अगर तुम इस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया ना तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। वो पैटर्न क्या है देखना एक बार, तुम लेफ्ट साइड में देखो, हर जगह तुमको x² दिख रहा है, तुमको हर जगह x² दिख रहा है कि नहीं, ये पैटर्न को देखना एक बार। तो अगर मैं हर जगह x² दिख रहा है तो हम x² को क्या करेंगे पता है, x² को सिर्फ पार्शियल तक के लिए y ले लेंगे। क्या करेंगे बताओ तो, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन तक के लिए हम उसको y ले लेंगे। तो याद रखना यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में नहीं किया है, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना ये प्रोसेस क्या इंटीग्रेशन का प्रोसेस है नहीं। क्या पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का मेथड है नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन इज एन अलजेब्रिक मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द टोटल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल्स। तो याद रखना ये जो स्टेप है, ये स्टेप कोई पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है। हम लोगों ने ये पार्शियल फ्रैक्शन को आसान बनाने के लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी x² दिख रहा है, यहाँ पे भी x² दिख रहा है, यहाँ पे भी x² दिख रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन तक के लिए उसको y ले लिया। अगर ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन क्या होता है तो पता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं।
याद रखना डिफरेंस दोनों में ध्यान देना। डिफरेंस क्या है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो ये तुम्हारा पार्शियल नहीं है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं है इंटीग्रेशन का, ये सिर्फ पार्शियल सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग ने किया, लेट लिया आई मीन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई वाई प्लस 4 प्लस b बाई वाई प्लस 9, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के और हम a और b का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेके a और b का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। ओके, अब बताओ मैं यहाँ पे a के डिनोमिनेटर में y प्लस 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करेंगे एक बार, -4। तो लेफ्ट में आ गया -4 और राइट में आ गया -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 9 5, तो यहां से a का वैल्यू आ गया -4/5। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे -9, ठीक है ना, ये रहा b के नीचे y प्लस 9, तो लेफ्ट में आ जाएगा -9, -9 प्लस 9 0, -9 प्लस 4 इज 5, तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा -9/5। अब ये a और b का वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, y बाई वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल्स टू a बाई, a का वैल्यू है -4/5 इंटू वाई प्लस 4 प्लस b बाई वाई प्लस 9। अब एक बात बताओ तुम लोग से, मेरे एक क्वेश्चन है, मैं क्या y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दूं क्या, कैन आई इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट which is in terms of y, or do I need to replace the value of y equal to x square? We need to replace the value of y equal to x square, because please note down, we are not doing substitution in integration. This is only, I mean, I assumed y is x square as y, sorry, just to make this partial part easy. तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वापस से y की जगह पे x square जरूर से रिप्लेस कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन तक के लिए है, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो इफ वी स्टार्ट इंटीग्रेशन, सो वी फाइंड दैट i becomes -4/5 कांस्टेंट है, बाहर रखो, x square plus 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 square, and we can apply x square plus a square का फॉर्मूला। We can write 9 as 3 square, and again we can apply x square plus a square का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a tan inverse of x by a, ये हो जाएगा 1/a tan inverse of x by a plus c। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, so you are getting I equals to -2/5 tan inverse of x by 2 minus 3/5 tan inverse of x by 3 and finally plus c। All right everyone, तो एक बार इसको कॉपी कर लो फटाफट से। I am writing few questions and just tell me कि कौन से टाइप को मैच कर रही है। नंबर 13 लिख रहा हूं मैं, that is x square divided by x to the power 4 minus 1. Then I am writing number 14, which is x to the power 4 divided by x square plus 1, x square plus 9 and x square plus 16. So everyone tell me कि यहां पे तो मैं डिनोमिनेटर को x to the power 4 minus 1 को x square का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख के a minus b into a plus b लिख दूंगा, ठीक है। अब तुमको एक पैटर्न समझ में आया ना, जो पिछले वाले समय पैटर्न था, देखो x square x square x square, क्यों बेकार में हम x square minus 1 को और फैक्टराइज करें, इसको y लेके और इस पर पार्शियल अप्लाई कर लेना, तुम्हें समझ में आया तो बात।
और इंटीग्रेशन से पहले वापस से क्या करोगे तुम लोग, y के जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब बताओ ये वाले समय क्या करें, बताओ इस समय देखते कौन बता पाता है, बताओ x स्क्वायर, लेकिन क्या यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या मैं x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर बाई y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, कोई बता सकते हैं, यस 6 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर 6, तो ये सब भी चेक करते रहना, तो हो जाएगा ना तुम लोग से ये सब टाइप का सम। अब बस एक टाइप बचा हुआ, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ टुडेस क्लास, आज का क्लास लास्ट टाइप बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखना तुम लोग, यहाँ पे 1/x है और ब्रैकेट में x टू द पावर n प्लस 1 है, ऑलराइट, just wait. So everyone note down, this is a type of question, okay? ये एक टाइप है, क्वेश्चन का एक टाइप है, जिस टाइप में क्या तुम ध्यान से एक चीज नोट करना, अगर तुम अपने पीडीएफ पे ध्यान से नोट करो तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए, क्वेश्चन नंबर 16 का बी और सी एकदम एक जैसा है, इन सब में एक सिमिलरिटी क्या देखना एक बार, कि ये ब्रैकेट के बाहर सिर्फ x है और ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट, इसमें x का पावर कितना भी लार्ज हो सकता है, x टू द पावर 5 भी हो सकता है, x टू द पावर 6 भी हो सकता है, x टू द पावर 10 भी हो सकता है, x टू द पावर 99 100 कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का सम में क्या करेंगे हम लोग, पहले x टू द पावर n प्लस 1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद ध्यान दो x जैसा है वैसे रह जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 के जगह पे t लगा दो, ये हो गया 1/n x टू द पावर n माइनस 1। यू नो दैट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्रेशन, जैसे मान लो मैं t से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो पूरा इंटीग्रेंड जो है वो t के टर्म्स में आना चाहिए, तो 1/n को तो बाहर रखिए, व्हाट इज x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, बताओ व्हाट इज x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, बताओ क्या होगा, x टू द पावर n। अब यहाँ पे x टू द पावर n जो बच गया है, बताओ तो हम x टू द पावर n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, कोई बता सकते हैं, यस t माइनस 1, ऑलराइट। अब बताओ मुझे, क्या मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूं, क्या मैं इसमें पार्शियल अप्लाई कर सकता हूं, a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा ना। लेकिन मैं तुम लोग से एक ऑल्टरनेटिव मेथड पूछूंगा कि जो अपना तुम टाइम वेस्ट करोगे पार्शियल में सॉल्व करके, इतना छोटा छोटा समय तो तुम अपना दिमाग लगा के भी इसको तोड़ सकते हो दो दो फ्रैक्शंस में, क्या एक तरीका है बताओ तो, लिख रहे हैं, कर सकते हैं ऐसे, यस, ठीक है ना। न्यूमरेटर में 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, t, और उसके बाद t माइनस 1 लिख दिया, t और t माइनस 1, बीच में माइनस दे दिया कि t कैंसिल हो जाए, 1 आ रहा है। अब बस इसको स्प्लिट कर दो, t को t इंटू टी माइनस 1 से, तो यहाँ पे 1/t माइनस 1 बच जाएगा, t माइनस 1 को डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर दो, 1/t आ जाए, तो हो गया ना। एक देखो सेम ही चीज है, बट हम लोगों ने थोड़ा टाइम बचा दिया, तो ये सब चीज जानना चाहिए। नाउ विद दिस व्हाट आई फाइंड कि हम लोगों ने सारा टॉपिक्स पार्शियल का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ओके, सो यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस होमवर्क and complete this topic partials. Thank you.